Today we have a target to understand about the digital logic family. So first of all, let's understand what exactly the meaning of digital logic family. So this digital logic family belongs to how a semiconductor material is eligible to make a transistor. And when a transistor is being made, so what are the components, how a transistor can be created, how a small circuit can be created, and with the help of these transistors, small devices can be created through this. So the process by which we are connecting a transistor with the circuit, the process by which we are connecting or making a small circuitry, which is called as an integrated circuit, is called as a digital logic. So if suppose you have an AND logic, you have a OR logic. So how this AND and OR logic is created? We say, yeah, these are the digital devices. Exactly. And we know that these digital devices are used for various purposes. And we say this is an AND logic, this is an OR logic, we have a NOT logic, XOR. So when these are the logic, so whether only one transistor is capable to design this? No, not at all. So large number of the transistors, large number of the circuit combinations are there, which helps you to design. How they are going to work this? We let's understand. A circuit configuration or approach used to produce a type of digital integrated. It means AND gate is that integrated circuit, OR gate is a circuit, and how it is being connected with the transistors. This is the process called as a digital logic. Different logic functions, when fabricated in the form of IC with the same approach, or in other words, belonging to the same logic family. If suppose you are making an IC, so that IC must have a uniformity of creation of circuit. सिंपल सी आईसी जब बना रहे हैं तो जरूरी हो जाता है उसमें कि जब हम आईसी बनाएं तो आईसी की सर्किटरी जो है दैट शुड हैव अ कॉमन एट्रीब्यूट्स, कुछ उसकी कुछ कॉमन फंक्शनिंग होनी चाहिए, कुछ कॉमन वर्क इनपुट्स होने चाहिए। अब ये कॉमन वर्क इनपुट्स जो होते हैं उसको हम लॉजिक फैमिली कहते हैं, मतलब एक टाइप की फैमिली मिलके एक टाइप ऑफ आईसी बनाएगी। The set of digital ICs belongs to same logic family are electrically compatible with each other. अगर आपने ये वाली आईसीस एक ही तरीके के टाइप के सर्किट से बनाई है तो आप कह सकते हैं कि ये आपस में compatible है। Compatible it means they can be connected with each other. एंड गेट आपने बना दिया, यू हैव एंड गेट आईसी, यू हैव और गेट। अब आपको एंड और एक साथ यूज करना है तो आपको एंड की आईसी यूज करनी पड़ेगी और की आईसी यूज करनी पड़ेगी। सो इफ दे बिलोंग्स टू सेम लॉजिक फैमिली, अब उनकी फैमिली एक ही, उनकी बनाने का तरीका एक ही है, तो उनके वोल्टेज लेवल, उनके नंबर ऑफ पिन, उनके आउटपुट, उनकी स्टेबलाइजेशन कंडीशन, उनकी बायसिंग कंडीशन ये मैच करेंगे, तब आप आईसीस को आईसीस से ऐड ऑन कर पाएंगे। दिस इज एग्जैक्टली द मोटिव। सो मूविंग अहेड, वी सी हियर ये होती क्या है, फैमिलीज कौन सी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी गो दैट वी फाइंड आउट दैट आरटीएल, डीटीएल, टीटीएल, ईसीएल, मॉस एंड सीमॉस, ये टर्मिनोलॉजी है। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली दिस। आरटीएल मतलब अगर आप कोई आईसी बना रहे हैं, उस आईसी के अंदर अगर आपने रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, लॉजिक यूज किया है, मींस अ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स एंड ट्रांजिस्टर, देन यू नेम इट लाइक आरटीएल। अगर आपने उसमें डायोड और ट्रांजिस्टर के कॉम्बिनेशन यूज किए, मतलब अगर आप सिंपल एंड गेट बना रहे हो और एंड गेट बनाने में यू आर यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ डायोड एंड ट्रांजिस्टर, देन यू से दिस इज अ जीटीएल। Well, only transistor is used. Transistor and transistor, no other thing else. कुछ और नहीं यूज करेंगे, केवल क्या यूज करेंगे, transistors and transistors. Then we say this is the TTL. ECL, emitter coupled logic. When coupling of emitters, एक ट्रांजिस्टर के एमीटर का दूसरे ट्रांजिस्टर के एमीटर के साथ कपलिंग होगा, then we call it as a emitter coupled logic. Metal oxide semiconductor, MOS आपने पढ़े हुए हैं, that you know that, and CMOS. So these are the basically families. So what are the families? First of all, RTL, DTL, TTL, ECL, MOS, and CMOS. So if I ask to you, like a question comes up, if what is digital logic family? तो किसी एक आईसी को बनाने के लिए जो उसकी सर्किटरी होती है, सर्किट कंपोनेंट्स जो होते हैं, that is called as a logic family. और एक टाइप की आईसी को बनाने के लिए दूसरे साइड की आईसी के साथ कंपैटिबल क्रिएट करने के लिए हम सेम टाइप ऑफ लॉजिक फैमिली यूज करते हैं। हाउ वी कैन क्रिएट दीज सर्किट्स? सो हियर वी हैव अ नंबर ऑफ ऑप्शंस।
हम RTL के थ्रू बना सकते हैं, हम DTL के थ्रू बना सकते हैं, TTL, ECL, MOS एंड CMOS, ये हमारे पास ऑप्शंस होते हैं. That exactly the mean. So we have all these family. अब हमारा टारगेट क्या है? We have a target to understand and to read out कि किस तरीके से ये लॉजिक्स काम करते हैं. So let's move on. So, well, exactly, there's a Moore's law. This is somewhat related with the IC fabrication. We are not going to discuss this one here. And coming up directly the features. So, well, अगर किसी हम IC के बारे में बात करते हैं, we are talking about any IC. तो IC के कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे हमने कहा ना सर्किट बनाने जाएंगे, we are going to make a circuit. सर्किट बनाने से पहले हम उसके कुछ फीचर्स के बारे में बात करेंगे, that is very important. तो जब एक IC बनाते हैं तो हम किन किन फीचर्स की बात करते हैं? We talk about first terminology, fan out. फैन आउट क्या होता है? फैन आउट का मतलब होता है कि एक आईसी से हाउ मेनी अदर गेट्स कैन बी कनेक्टेड. सो इफ यू सी हियर द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड लोड्स कैन बी कनेक्टेड टू द आउटपुट ऑफ अ गेट. मतलब एक एंड गेट है आपके पास, वो एंड गेट कितने और एंड गेट को ड्राइव कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एज अ फैन आउट. सो हाउ मेनी नंबर ऑफ लॉजिक्स कैन बी कनेक्टेड एट द आउटपुट साइड. आउटपुट साइड पे जितने लॉजिक कनेक्ट हो सकते हैं उनको हम बोलते हैं फैन आउट. दैट इज द मेन. पावर डिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आपने एक आईसी बनाई हुई है, विद इन आईसी कितनी पावर कंज्यूम करेगा. अब आप लोग देखते हैं ना, यू हैव एन एग्जांपल, पुराने जो टेलीविजन होते थे उन टेलीविजन के साथ में एक स्टेबलाइजर लगाना होता था, पावर कंजप्शन ज्यादा थे. अब एलईडी बेस्ड आ गए हैं, पावर कंजप्शन नहीं है, स्टेबलाइजर की रिक्वायरमेंट नहीं है. पहले आपके पास सीएफएल होते थे, इलेक्ट्रिक बल्ब होते थे, अब एलईडी बल्ब है. तो ये दिस इज ऑल कैलकुलेशन ऑफ पावर कंजप्शन, कि हमारी जो डिवाइस है वो हमारी डिवाइस कितनी पावर कंज्यूम करेगी. एक लॉजिक गेट जो आपने बनाया है, पावर डिसिपेट, डिसिपेट का मतलब एब्सॉर्ब, हाउ मच पावर में बी डिसिपेटेड विद इट, ये इंपॉर्टेंट पावर. फिर प्रोपगेशन डिले की बात करेंगे. प्रोपगेशन डिले का मतलब ये डिवाइस समय कितना लगाएगी. प्रोपगेशन डिले का सबसे अच्छा एग्जांपल तुम लोग डेली लाइफ में यूज करते, यू हैव एन एग्जांपल लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब एंड ट्यूब. अगर आपको कमरे में अंधेरा है, so which works fast? Obviously bulb. You just press it on, it will give illuminations to you. And when you are pressing on the tube light on, it takes a little time. So delay. Where is more delay? The delay is in tube light. तो ये बहुत जरूरी है कि जो आपने गेट बनाया, when you are giving input and when it is giving you output, how much time it is taking. ठीक है, this is called delay. Noise margin. एवरी टाइम इट हैपेंस, कुछ अनवांटेड सिग्नल हमेशा हर सर्किट के अंदर होते हैं. इवन सपोज वी हैव अ लैपटॉप, वी हैव अ मोबाइल फोन इन हैंड्स, इसके अंदर भी कुछ सिग्नल्स हैं अनवांटेड, वोल्टेज है, करंट है, दैट हैज टू बी रिमूव्ड आउट. तो वो कितना नॉइज मार्जिन है, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट that exactly has to be calculated and determined over here. This is called as a feature of noise margin. Now coming up this next one, once we got this, and once you have this feature, we can understand like that. This is a diagrammatic view of fan out. So this is the one gate, and how many gates are connected? This is called as a fan out section. That can be understood easily. Simply fan out. So if we have a device, so how we are going to connect this? This is called as a fan out. So fan out is somewhat like if you have a simple output circuit and उस आउटपुट सर्किट से दो ब्रांचेस डिवाइड होनी है. तो अगर 1 एम्पियर का करंट वो देता है तो दो ब्रांचेस में कितना जाएगा? 0.5. इस तरीके से आप कैलकुलेट करते हो कि फैन आउट कैसे होगा. अगर उसके पास 1 एम्पियर करंट है ही नहीं, ऑलरेडी 0.5 है, तो केवल एक डिवाइस को कर पाएगा. अगर उसके आउटपुट में 10 एम्पियर करंट है और हर किसी को 1 एम्पियर की रिक्वायरमेंट है, तो ये 10 डिवाइसेस को कर पाएगा. बाय दिस प्रोसेस यू कैलकुलेट योर फैन आउट. So this is the process of calculating the input and output current. 0.4 मिली एम्पियर है, 40 माइक्रो एम्पियर सबको डिवाइड कर दिया, कितने को दे सकते हैं आप? 10 को, लाइक दैट. 1.6 मिली एम्पियर है, हाउ मेनी यू कैन गिव लाइक दैट? दिस अ फैन इन. सो फैन इन एंड फैन आउट. फैन इन टेल्स यू कितनी डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती हैं, और फैन आउट टेल्स यू कि कितनी डिवाइस आउटपुट पे कनेक्ट हो सकती है. दिस इज अ टर्मिनोलॉजी यूज्ड विद द फैन इन एंड फैन आउट. So that's a very important part. And we have a power dissipation and other thing. So we will discuss all of these, but before that, let's begin with the first of all, diode logic, talking about the detail, how it is working on. So let's check it out.
And let's see this one. This is basically a simple circuit talking about the RTL. Let's start this one. अब हमें ये समझ में आ गया, like we have to create a circuit, और सर्किट के कुछ अपने पैरामीटर्स है, उन पैरामीटर्स का हमें ध्यान रखना है. So among them, let's we have a resistor, transistor, logic. So first of all, this RTL is the first logic family. Register, transistor, logic. So RTL is the first logic family which is not available in the monolithic form. Monolithic it means single sheet की जो डिजाइन होती है. क्यों? क्योंकि जो रजिस्टर होता है, that's a very important part. हम जो आईसीज डिजाइन करते हैं ना, और जो रजिस्टर्स आप देखते हैं, तो रजिस्टर्स ज्यादा बल्की होते हैं. इट हैज अ ग्रेट साइज. इनका मास ज्यादा होता है, ज्यादा भारी होते हैं, बजाय किसके? आपके ट्रांजिस्टर्स और डायोड के. तो अगर आपको ये आईसी बनानी है, तो ये मोनोलिथिक, मोनोलिथिक का मतलब जो सिंगल शीट पे ही फैब्रिकेट की जा सके, दैट इज कॉल्ड एज अ मोनोलिथिक आईसी. तो दैट कैन नॉट बी क्रिएटेड मोनोलिथिकली. क्या होगा उसके अंदर? उन आईसीज के अंदर अगर आप बात करते हो, तो यहाँ पर अलग से रजिस्टर्स लगाने. The basic circuit of the RTL logic family is the NOR gate. इसे हम NOR gate डिजाइन करते हैं, which input is associated with the one resistor and one transistor. अगर हम इसको देखें ध्यान से, how it looks like, so let's say this is for one. So if you see here, this is simply a gate output x plus y. This is a NOR gate circuit. तो logic family जिसमें ट्रांजिस्टर्स और ट्रांजिस्टर के साथ में रजिस्टर्स के कॉम्बिनेशंस यूज किए जाते हैं, we call them as RTL. So we call them register, transistor, logic. So if you see here, we have the register R1, we have a register R2. ये इनपुट इसका X हो गया, ये इनपुट इसका Y हो गया, दोनों के बेस इनपुट पे दिए गए. Here we have a VCC पावर सप्लाई, आपका VCC सप्लाई दिया है, रेजिस्टेंस R3 है यहाँ पर. और क्योंकि ये पूरा का पूरा सर्किट इट इज मेड अप ऑफ ट्रांजिस्टर एंड रजिस्टर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ Z equals to x plus y and complement of it, it means a NOR gate. तो जो आउटपुट मिलेगा, इसका आउटपुट जो होगा वो x plus y का NOR gate होगा. So this kind of a family, this kind of a circuit attribute is called as a RTL. इसको हम रजिस्टर, ट्रांजिस्टर कहते हैं. तो इट्स वेरी सिंपल. इफ समबडी आस्क्स टू यू, क्वेश्चन आता है कि किसको बोलते हैं रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, जब हमारे लॉजिक गेट्स रजिस्टर्स और ट्रांजिस्टर्स को यूज करके बनाए जाते हैं, then we call it as a register, transistor, logic. इसका ट्रुथ टेबल वी नो दैट, नॉर गेट का ट्रुथ टेबल क्या होता है, वर्किंग की बात करते हैं. अब बात करते हैं कि अगर एक हमारे पास नॉर गेट है, क्वेश्चन आता है कि सपोज कीजिए यू हैव अ आरटीएल नॉर गेट, हाउ इट वर्क्स. सो लेट्स स्टार्ट दिस. इफ एनी इनपुट इज हाई, the corresponding transistor is driven into saturation and the output goes low regardless of the state of the other transistor. क्या हुआ? Coming back on this one, and let's see this. अगर यहाँ पर नॉर का हमारा क्या होता है, NOR is simply giving a truth table like this one. It shows you. If you go here, the truth table is, अगर NOR में दोनों में से कोई भी इनपुट हाई हो जाएगा, दोनों में से कोई भी इनपुट हाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऑल जीरोस. यानी अगर आपको आउटपुट हाई चाहिए, तो यू हैव टू हैव जीरो एंड जीरो, दोनों इनपुट आपके लो होने चाहिए, तब आपको हाई आउटपुट मिलेगा. स्टेटमेंट में यही एक्सप्लेनेशन दी जाती है. करस्पॉन्डिंग ट्रांजिस्टर इज ड्रिवन इनटू सैचुरेशन and the output goes low if any input is high. जिस किसी का भी इनपुट आपने हाई किया, वो सैचुरेशन में चला जाएगा. and that is comes directly to the functioning of the very first year theory. फर्स्ट ईयर थ्योरी क्या कहती है, यहाँ पर अगर आपने ये बेस है ना, एंड इफ यू सी हियर, दिस इज द एनपीएन ट्रांजिस्टर, दिस इज द एनपीएन ट्रांजिस्टर. अब हो क्या रहा है एक्चुअली देखना, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर में ये एमीटर है, ये कलेक्टर है, कलेक्टर कनेक्टेड है पॉजिटिव से. जैसे ही आप यहाँ पर बेस टर्मिनल को पॉजिटिव करते हैं, हाई करते हैं, हाई पॉजिटिव टर्मिनल इस ट्रांजिस्टर को सैचुरेशन में ले जाएगा. सैचुरेशन में ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है, शॉर्ट सर्किटिंग की तरह काम. इट वर्क्स लाइक अ शॉर्ट सर्किट. तो जो भी करंट होगा, वो सारा का सारा करंट यहाँ पर ग्राउंड में फ्लो कर जाएगा, और कोई भी वोल्टेज का ड्रॉप नहीं होगा. सिमिलरली अगर आपने वाई को ऑन हाई कर दिया, वेरी सिंपल कंसेप्ट, टफ नहीं है, इजी. अगर आपने इसको वाई को हाई कर दिया, तो ये जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर तीन मोड में काम करता है ना, कट ऑफ, एक्टिव एंड सैचुरेशन. तो जैसे ही आप इसको हाई करेंगे, तो ये ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में चला जाएगा.
और सैचुरेशन में जाने से शॉर्ट सर्किट होगा, और शॉर्ट सर्किट होगा तो आप ले रहे हैं यहाँ पर x प्लस वाई। तो अब जब आप x प्लस वाई ले रहे हैं यहाँ पर, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा ही नहीं, बिकॉज वी नो शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर आपको कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। सो इन एनी केस अगर आपने यहाँ पर इसको किया तो ये शॉर्ट सर्किटिंग आउटपुट ले लेगा, इसको हाई किया तो ये। जब ये दोनों 0 0 होंगे तब ये एक्टिव रहेगा, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, वो ड्रॉप यहाँ पर हाई आउटपुट देगा। हाई आउटपुट का मतलब क्या है? हाई आउटपुट का मतलब है कि इस टर्मिनल पर वोल्टेज है या नहीं। तो अगर ये टर्मिनल ग्राउंड से कनेक्ट हो गया, शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब ग्राउंड से कनेक्ट हो गया, तो नो आउटपुट, जीरो वोल्टेज इज लो। अगर ये ऑन है तो इसका अपना खुद का VCB वोल्टेज का ड्रॉप होगा, तो इट हैज सर्टेन वोल्टेज, और वो वोल्टेज किसके बराबर होगा? दैट विल बी इक्वल टू द हाई वोल्टेज। इससे आपको हाई वैल्यू। This is a very simple functioning of RTL NOR gate. So first of all, what is RTL? Register transistor logic. And how a NOR gate is working? So this is a NOR gate. तो अगर हम जो लॉजिकली हम यूज करते हैं डिजिटल सर्किट में, वो यही यूज करते हैं, डिब्बा बनाते हैं, बॉक्स, बॉक्स में एक X इनपुट, Y इनपुट और तीसरा Z इनपुट. And what is inside that box? Inside that box is that kind of a circuit, which is made up of resistor and transistor. So that's very simple. We got that. And finally, we're moving again. So this kind of a working and function is working. So now most important part, if suppose you are working with this, we have to go for characteristic. Characteristic पढ़नी पड़ेगी. It has a fan out of 5. तो हमने ये स्टडी की, और स्टडी करने के बाद कैलकुलेशन करके निकाला कि फैन आउट कितना आता है, 5 आता है। प्रोपोगेशन डिले कितना है इसका? 25 नैनो सेकेंड। मतलब 5 नॉर गेट से, एक नॉर गेट से 5 और नॉर गेट कनेक्ट किए जा सकते हैं। प्रोपोगेशन डिले कितना है? 25 नैनो सेकेंड। पावर डिसिपेशन कितना है? 12 मिली वॉट। 25 नैनो सेकंड लगेंगे। अगर आपने x इनपुट दिया और यू वांट टू चेक आउट योर y कितना आया, आउटपुट कितना आया, अगर ये आप चेक करना चाहते हो, z जो भी था आपका वो चेक करना चाहते हो, तो आपको 25 नैनो सेकंड का टाइम। पावर डिसिपेशन कितना है? 12 मिली वॉट, 12 मिली वॉट का पावर डिसिपेशन है। नॉइज मार्जिन ऑफ लो सिग्नल इनपुट इज 0.4। नॉइज मार्जिन का मतलब, जैसे आपने कहा 0 को लो और समथिंग को 2.4 को हाई का, अब 2.4 में हो सकता है बीच में 0.2 भी आ जाए, 0.4 भी आ जाए, तो कितने रेंज तक ये हाई दिखाएगा और कितने रेंज के बाद ये लो कर देगा? दैट इज 0.4 वोल्ट। नॉइज इम्यूनिटी इसकी अच्छी नहीं है क्योंकि 0.4 वोल्ट इज अ बिग मार्जिन, और स्पीड भी क्योंकि हम देख रहे हैं 25 नैनो सेकंड ले रहा है, तो इट्स अ लो। So these are the basically characteristic of this. Coming up to the second one, now talking about DTL. अब इस DTL में क्या करेंगे हम? डायोड और ट्रांजिस्टर के लॉजिक। So the basic circuit is DTL, logic is the NAND gate. इसका जो मेन सर्किट बनता है वो NAND गेट बनाने में डिजाइन किया था। So let's check it out how it is working. So here this is the A terminal, it is a B terminal, and here we have transistors, and additionally now we have diodes D1 and D2. तो ये जो सर्किट कहलाएगा, this circuit, particular circuit is called as a DTL, diode transistor logic. So this diode transistor logic has the same functioning. Each input associated with one diode. The diode and resistor form an AND gate. The transistor serves as a NOR gate. कंसेप्ट वही है यहाँ पर भी, कि अगर ये किसी भी तरीके से टर्मिनल हाई हो जाएगा तो ये सैचुरेशन में चला जाएगा, देयर विल बी नो आउटपुट। अब क्योंकि हमने बनाया NAND गेट, और NAND गेट क्या होता है? NAND गेट होता है, अगर हम इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं तो वी गॉट दैट ट्रुथ टेबल में कि किसी भी तरीके से कोई भी इनपुट अगर 0 हो गया तो हमें आउटपुट हाई मिल जाएगा। कोई भी इनपुट 0 होने का मतलब हाई, और कोई भी इनपुट 0 का मतलब क्या है? यहाँ देखिए, 0 देने का मतलब है, लो टर्मिनल देने का मतलब है ये कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग, दिस बिकम्स नॉन कंडक्टिंग। तो अगर आपने इन दोनों में से किसी भी एक को भी 0 दे दिया, 0 देने से हुआ ये टर्मिनल हाई, ये टर्मिनल लो, हाई टर्मिनल एंड लो टर्मिनल मिलके क्या होगा? डायोड को कंडक्टिंग करेंगे। ये जो पोटेंशियल है, करंट यहाँ फ्लो कर जाएगा, और यहाँ पर कुछ भी आपको वोल्टेज नहीं मिलेगा। जब ऐसा होगा जीरो कंडीशन में, तो ये हमेशा लो रहेगा, और लो रहेगा तो यहाँ पे वोल्टेज। लेकिन अगर ये डायोड किसी भी तरीके से आपने ऑफ कर दिया, जैसे आपने इसको 1 दिया, इसको 1 देने का मतलब हुआ कि यहाँ पे हाई वोल्टेज,
तो ये डायोड ऑफ, इसको भी बंद दिया, हाई वोल्टेज, डायोड रिवर्स वाइज ऑफ, सारा का सारा पोटेंशियल जो हाई है वो यहाँ अप्लाई हो जाएगा, बेस हाई पोटेंशियल पे चला जाएगा। हाई होने का मतलब है ये इसको सैचुरेशन में ले जाएगा, और सैचुरेशन में ले जाने का मतलब है ये इसको ऑन कर देगा, ऑन करते ही फिर से क्यू जीरो हो जाएगा। यही होता है नैंड गेट में। तो नैंड गेट में जब ये दोनों 1 1 होंगे तब आपको जीरो, बाकी अगर इन दोनों में से कोई भी जीरो हो गया, अगर एक भी जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो ये जो पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर इसके अक्रॉस जनरेट हो जाएगा, क्योंकि ये पाथ बन जाएगा और सर्किट में कुछ भी करंट यहाँ नहीं फ्लो करेगा, ये हमेशा लो वोल्टेज पे रहेगा। लेकिन अगर आपने इन दोनों को 1 किया तब ये हाई वोल्टेज पे जाएगा, करंट फ्लो करेगा और हाई करंट इसको सैचुरेशन में ले जाएगा। दैट्स वेरी वेरी सिंपल प्रोसेस। तो ये एक नैंड गेट बन गया, किसको यूज करके, वी आर यूजिंग अ डायोड, डायोड को यूज किया और ट्रांजिस्टर को, नाम रख दिया इसका डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक। तो इस तरीके से ये डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक काम करता है। तो ये इसका ट्रुथ टेबल हुआ। इसकी वर्किंग, द करस्पॉन्डिंग डायोड कंडक्ट्स करंट थ्रू वीसीसी एंड रजिस्टर इनटू द इनपुट मोड, सेम प्रोसेस है जिसके बारे में हमने बात करी। वोल्टेज एट द पी इक्वल टू इनपुट वोल्टेज प्लस डायोड ड्रॉप। जो डायोड होगा वो ऑन होते ही सारा का सारा अपने थ्रू करंट फ्लो करा लेगा, उसको हाई नहीं होने देगा। दिस इज द वर्किंग। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक में अगर हम बात करेंगे, क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा, इट हैज अ फैन आउट ऑफ 8, मतलब कितनी डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहा है ये, 8 को कनेक्ट कर रहा है। आरटीएल में कितनी कनेक्ट हो पा रही थी, 5 कनेक्ट। नॉइज इम्यूनिटी इंप्रूव हो गई, इट हैज अ हाई नॉइज इम्यूनिटी। पावर डिसिपेशन 12 मिलीवॉट, 12 मिलीवॉट का पावर डिसिपेशन हो गया, पावर डिसिपेशन बढ़ गया, कितना होता है हमारा 12 मिलीवॉट। प्रोपोगेशन डिले भी बढ़ गया, कितना हो गया 30 नैनो सेकंड, वहां 25 का मिल रहा था क्योंकि डायोड थोड़ा सा टाइम लेगा। एंड देन आफ्टर वी हैव नॉइज मार्जिन इज 0.7 वोल्ट, वहां 0.4 का नॉइज मार्जिन था, यहाँ पे 0.7 वोल्ट। तो ये एक एडिशनल और इफेक्टिव हमें वेटेज मिल गया यहाँ पर। तो नॉइज मार्जिन तो हमें अच्छा मिला और फैन आउट अच्छा मिला, लेकिन पावर डिसिपेशन किसके केस में और यहाँ पर एवरेज, इन दोनों ही केस में हमें थोड़ा सा लॉस है। तो दिस इज एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ डीटीएल। सो सी हियर, दिस इज द वोल्टेज अप्लाइड, वोल्टेज अप्लाई किया। अब यहाँ पर आउटपुट चाहिए, ये ग्राउंड टर्मिनल। तो अगर आपने यहाँ पर हाई दिया, ये वोल्टेज हाई है, हाई अगर आपने देंगे और लो देंगे, तो लो देने पर तो ये होता है कंडक्टिंग, है ना, सीधी सी बात, कंडक्टिंग होगा। हाई देने पर क्या होगा, ये नॉन कंडक्टिंग हो जाएगा। तो अब आपको डायोड पर जो पोटेंशियल देंगे, यहाँ पर आपको इसके अक्रॉस आउटपुट लेना होता है। अब ये जब दोनों ही 1 1 होंगे तभी आपको आउटपुट मिलेगा। अगर इनमें से एक भी जीरो हो गया, एक भी जीरो हो गया, तो इसका मतलब है आपको आउटपुट जीरो होने का मतलब है कि ये शॉर्ट सर्किटिंग, और जब शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगी तो उससे क्या होगा कि यहाँ पर कोई भी ड्रॉप आपको नहीं मिलेगी। जब वोल्टेज ड्रॉप नहीं मिलेगा तो जीरो, तो इसके जीरो होते ही ये इसको शॉर्ट सर्किट पाथ देगा, इसके जीरो होते ही ये इसको शॉर्ट सर्किट पाथ देगा। तो दोनों जीरो है तब भी शॉर्ट सर्किट पाथ मिलेगा, लेकिन कि जब दोनों 1 होंगे तो ये दोनों डायोड्स ऑफ हो जाएंगे, और ये जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा वो यहाँ पर हाई वोल्टेज रिप्रेजेंट हो जाएगा, एंड इट वर्क्स लाइक अ एंड गेट। तो ये इस तरीके से हमारा सिंपल लॉजिक्स काम करते हैं। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल लॉजिक। ऐसे ही हमने आरटीएल का केस अभी पढ़ा था, आरटीएल के केस में भी हमारा सिंपल लॉजिक काम करता है, ये हमारा नॉर गेट है, दैट्स अ वेरी सिंपल वन। So this is exactly the RTL and DTL, and the same we have talked about how this DTL is working. So RTL, DTL, and many more gates. Not only this DTL NAND gate can be created, and if you talk modified कर सकते हैं. So many aspects are there. अब इसके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा केवल NAND gate या NOR gates ही नहीं है. So many gates are there that can be created with the help of RTL and so on. So I'm just clearing this. सबसे पहले important part क्या है and concluding this session. पहला important part, digital logic family. क्या होती है डिजिटल लॉजिक फैमिली? इज बेसिकली अ मेथड जिसके तरीके से आप एक आईसी को क्रिएट करते हैं, आईसी बनाते हो, उसके अंदर का जो इंटरनल सर्किट होता है वो बनाते हो। क्या यूज करके बना रहे हैं आप उसको? केवल रजिस्टर्स हैं, ट्रांजिस्टर्स हैं, ट्रांजिस्टर रजिस्टर के कॉम्बिनेशन है, डायोड के हैं, ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर के हैं, मॉस के हैं, ये सारे कॉम्बिनेशंस डिसाइड करते हैं आपका इंटरनल सर्किट किस तरीके का है। ठीक है,
इनको हम बोलते हैं लॉजिक फैमिली। लॉजिक फैमिलीज के अपने खुद के पैरामीटर्स होते हैं। तो जब भी हम उनकी स्टडी करने जाते हैं तो सबसे पहले हमें उन पैरामीटर्स को स्टडी करना पड़ता है। वो कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं? सो वी हैव टॉक्ड अबाउट, वो पैरामीटर्स हमारे हैं, फैन आउट क्या है, पावर डिसिपेशन क्या है, प्रोपोगेशन डिले क्या है, नॉइज मार्जिन क्या है। ये सारे पैरामीटर्स हमें पहले पढ़ने पड़ते हैं। तो जब हम इन सारे पैरामीटर्स को डिसाइड करते हैं तब हम कहते हैं कि ये फैमिली यूजफुल है इसके लिए, और ये फैमिली यूजफुल है इसी दूसरे। दिस इज एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ। सो नॉट टेकिंग too much today, I'm simply giving an idea so that you must pop up with me. आप साथ में आ जाए and you would be able to get this one.